Good morning, students. In our last class, we were discussing about the pedigree analysis in humans. Okay, today class is also related to the previous class. In today's class, we are going to study about the various symbols, how these symbols are utilized in analysis of pedigree. Okay, in humans. तो हम सिंबल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि पेडिग्री एनालिसिस करते समय इन सिंबल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और हाउ दे आर हेल्पिंग इन स्टडी ऑफ पेडिग्री। ओके, इसके बाद में हम कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सी स्टूडेंट्स, in this slide we are seeing various types of symbols. Okay, the first one that is represented as a parallelogram, is in square shape. Okay, or even that is given in rectangular shape. Okay, so that represents the male. Okay, male of the family. Then the circle is given, that is representing a female. Then another parallelogram that is in square shape, that represents the sex unspecified sex को represent कर रहा है. Then we are having the colored form of the different symbols. The colored form, they are representing, actually these colored forms, they are representing the affected individuals. What are the affected individuals are given? If they are given in the diagram with colors, that means the individuals will be affected ones. Okay, then in the next one we are seeing one rectangle is attached with a line with the circle. Okay, so that means this line of attachment, that is showing the mating. Okay, so these are the two parents which are mating. Okay, so in the next diagram we are having two lines. This is representing the mating between the relatives. That means two lines that shows the more closeness. Okay, more closeness, that is what we are having, the relatives. Okay, among the relatives, the two individuals, they are mating. Okay, uh, then in next figure we are seeing two different figures. Okay, and along with these two figures we are having, see in this figure, with these two figures we are having attached another two figures. They are actually showing, these two figures, they are showing, or symbols, they are showing the children. Okay, or progeny, first progeny of the parents, and these are the parents. Okay, likewise another diagram is given there. Okay, here see in this, these two are the parents again, and they are showing a child. And here you see this symbol is exactly same in shape with the father. Here it is male, and here also it must be a male, but is representing for the affected
Okay, the disease is being represented with the color, okay, and the shape that is representing the sex. Now, students, as we have studied about the various symbols which are going to be utilized in एनालिसिस ऑफ पेडिग्री, ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स हैं, हमने देख लिया, स्टडी कर लिया, बट how this pedigree is going to be beneficial or the significance of the pedigree analysis, what is actually that, ठीक है, ये हम समझने वाले हैं कि पेडिग्री एनालिसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी स्टडी करने का क्या पर्पस है हमारा, ठीक है. एक्चुअली इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रॉन्ग टूल विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट. ये ऐसा टूल है, स्ट्रॉन्ग टूल प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम इनहेरिटेंस स्पेसिफिक ट्रेट्स का स्टडी कर सकते हैं. हम फैमिली में या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, इंडिविजुअल्स में हम एबनॉर्मेलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं. वेरियस डिसीजेस को भी हम स्टडी कर सकते हैं. Students, as you know, number of genetic disorders, okay, and these disorders, some of them, they are represented or reported due to the mutations in human beings. ह्यूमन बींग्स में म्यूटेशंस की वजह से कुछ बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं. उन सारे ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है. These are going to be studied by us, okay. How these are grouped? Here are two categories: Mendelian disorders and chromosomal disorders. In Mendelian disorders, we study the pattern of expression of genes, okay. जैसे हमने मेंडेलियन लॉज पढ़े थे उसमें इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी किया था, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स वी हैव स्टडीड, ओके. तो जो इनहेरिटेंस पैटर्न था दैट वाज शोन बाय द जीन्स, उस पैटर्न को हमने स्टडी किया था, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर्स, पर्टिकुलर और स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, ओके. यहाँ भी हम ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनको हम एज ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर की तरह से ट्रीट करते हैं और हम उसको स्टडी करते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्टेन जीन, ओके. तो इस तरीके के पर्टिकुलर टाइप के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो कि पर्टिकुलर जीन्स के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, and they are unusual, and they are making the alterations in gene, particular gene is going to be altered, ठीक है. पर्टिकुलर जीन के स्ट्रक्चर में ऑल्ट्रेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है. सो दैट जीन इज गोइंग टू बी इनहेरिटेड into the progeny and that will express its disorder, okay. तो वो जीन प्रोजेनी में ऑल्ट्रेशन के बाद ट्रांसमिट हो रही है या दैट इज शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट प्रोजेनी, ठीक है. नेक्स्ट प्रोजेनी में ट्रांसमिट हो रही है तो उसका एक्सप्रेशन भी नेक्स्ट प्रोजेनी में दिखाई देगा, और जब वो नेक्स्ट प्रोजेनी में उसका एक्सप्रेशन दिखाई देगा तो दैट विल एक्सप्रेस इट्स अनयूजुअल बिहेवियर, और अनयूजुअल बिहेवियर दिखाई देगा, दैट मीन्स दैट विल बी द डिसऑर्डर, ओके. तो डिसऑर्डर जो होगा उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके इफ़ेक्ट्स भी होंगे, ठीक है. सो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन द बॉडी, सो दे विल बी कंसिडर्ड एज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और इनको हम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है. एंड देयर आर नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. दे आर color blindness, hemophilia, sickle cell anemia, cystic fibrosis, phenylketonuria, thalassemia, and few of them we are going to study here, okay.
the Mendelian characters or Mendelian disorders, they may be dominant or recessive. ठीक है, Mendelian disorders जो कि जीन के द्वारा एक्सप्रेस होते हैं, ओके, दे में बी डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स दे आर डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव. ठीक है, तो by studying the pedigree analysis one can easily understand whether the trait in question is dominant or recessive. मेंडेलियन एनालिसिस को स्टडी करने के लिए हम आसानी से ये जान सकते हैं कि क्वेश्चन में डोमिनेंट दिया है या रिसेसिव ट्रेट दिया है. ठीक है, और हम इसके हेल्प से वी कैन से द ट्रेट में ऑल्सो बी लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम. हम ये भी जान सकते हैं कि जो पर्टिकुलर डिसीज़ है दैट इज लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम. ठीक है, हम ये भी जान सकते हैं. देन इसका एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है दैट इज हीमोफीलिया. इन हीमोफीलिया व्हाट हैपन्स, हीमोफीलिया क्या डिसीज होती है? एक्चुअली in hemophilia the blood is not able to clot normally. ब्लड क्लॉट होने में सक्षम नहीं होता है. उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स और you can say the clotting responsible protein that is absent. okay, जो प्रोटीन क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या हम कह सकते हैं उसको क्लॉटिंग फैक्टर. ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है इस डिसीज़ में. इसका क्लासिकल एग्जांपल विक्टोरिया क्वीन है. उनकी फैमिली की हिस्ट्री को स्टडी किया, उसका पेडिग्री एनालिसिस किया, तो ये रिजल्ट निकल के आया दैट शी वॉज द कैरियर, और वो कैरियर थी अपने जेनेटिकल जो पेडिग्री एनालिसिस था, जो उनका पेडिग्री ट्री फैमिली का बनाया गया, तो उसमें ये बात साफ हो गई थी कि शी वॉज एक्चुअली द कैरियर एंड शी वॉज नॉट suffering with the disease. okay, disease to थी, but for that she was carrier. She was not phenotypically expressing, she was not able to express it. okay, but उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनमें वो डिसीज पास ऑन हो रही थी. ओके, क्योंकि देखिए जो मेल्स थे and they were suffering with the disease, and females they were not suffering. That means the male X chromosome, okay, the Y chromosome from male, that is that is descending. okay, मेल से Y क्रोमोसोम प्रोजेनी में डिसेंड हो रहा है, and they are getting the X chromosome from the female. okay, but in males only that disease is seen, that shows the X chromosome is only transferred from the female, as we know. okay, and the disease causing gene is always present on X chromosome, and the disease gene that is expressed in the progeny of males. okay, मेल्स की प्रोजेनी में वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है. इसका मतलब हुआ तो एक्स तो फीमेल से ही ट्रांसफ़र होता है. ओके, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन. ओके, तो
एक्स से ही ट्रांसफर सॉरी फीमेल से ही जब जाइगोट बन रहा है तो एक्स ट्रांसफर हो रहा है, और तो इसका मतलब होता है तो जीन्स भी फीमेल से ही ट्रांसफर होती है, हो रही है। ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया के पेडिग्री में हमने ये पाया कि बिकॉज only the male they are suffering, that means they are getting the gene from the female parent, and that was actually the Queen Victoria, and she was the carrier. Okay, so the uh, progeny is getting suffered. Okay, progeny हमेशा जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो सफ़र हो रही है, और उसमें मेल जो हैं उनके पास ये जीन है हीमोफीलिया का, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड one generation to the next generation. See here, it is X-linked recessive carrier mother, as shown. As you can imagine, this lady pictured as a Queen Victoria, and she is suffering with the uh, hemophilia, but she is a carrier actually, because on one X chromosome it is the gene which is situated, okay, which is located, and the male that is unaffected. So by mating these two, they are producing the children as the male that is unaffected, because the male is able to produce X and Y, two types of chromosomes, two types of gametes. Okay, दो टाइप्स के गेमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है मेल, जिसमें कि एक में एक्स है और एक में वाई है। तो मेल प्रोड्यूस होने के लिए तो मेल हमेशा वाई क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करेगा, तो यहाँ तो वाई क्रोमोसोम जा रहा है। ठीक है, एंड हियर फ्रॉम द एग ladies are or females are always able to produce only the gametes with X chromosomes. ठीक है, फीमेल्स ओनली एक्स क्रोमोसोम्स वाले गैमेट्स ही प्रोड्यूस करने में सक्षम होते हैं, एंड दे शी इज एबल टू ट्रांसफर टू टाइप्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, और दो टाइप के एक्स क्रोमोसोम्स को सेंड करने में सक्षम है। वन इज अफेक्टेड एंड अनदर वन इज नॉट अफेक्टेड। सो दिस वन here in the diagram, see this one that is able to express, okay, here see in this diagram, see in this diagram, the female is able to express two X chromosomes. Okay, one is affected and another one is, this one is non-affected one, and this one is affected one. Okay, so when only the unaffected X chromosome that is passing, okay, to the progeny, okay, that is what unaffected X chromosome that is passing to the progeny, okay, that is through the male, through the X, okay, and from the male the Y chromosome is passed on, okay, Y chromosome pass हो रहा है तो मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होता है, ओके, और जब X क्रोमोसोम का पास ऑन हो रहा है एंड they are contributing, they are producing non affected children. ठीक है, मेल और फीमेल
दोनों ही अ, दोनों ही अनअफेक्टेड चिल्ड्रन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर, बिकॉज एक्स इज, जो एक्स है वो अनअफेक्टेड है। अब हम दूसरे केस में देखते हैं, फीमेल का another X that is suffered or that is a carrier for hemophilia, ठीक है, हीमोफीलिया जीन के लिए कैरियर है। नाउ वी विल मेक अ क्रॉस विद एक्स एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल, ठीक है। इस एक्स कैरियर वाले एक्स क्रोमोसोम को हम एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के साथ कपलिंग कराते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए, एक एक्स कैरियर आ गया, ओके, एक एक्स कैरियर आ गया और एक एक्स फादर से आ गया। देन वी विल गेट द फीमेल चाइल्ड एंड शी इज गेटिंग ओनली द one X having the gene for hemophilia. That is what the carrier of hemophilia, हीमोफीलिया कैरियर को रिप्रेजेंट करती है। वेरस मेल चाइल्ड में एक्स क्रोमोसोम जा रहा है, दैट इज दैट वाज द कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, ठीक है, और यहाँ से वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है मेल को, ठीक है। तो एक्स और वाई मिलकर मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, बट द जीन is present on X chromosome, and that is what transferred or shifted from female. So that is having the combination of male and female or X and Y chromosome, and X chromosome is representing the, here the X chromosome is representing the disease or gene for the hemophilia, okay. And another picture is given here, X linked recessive affected father। अगर फादर अफेक्टेड है तो क्या होगा, जब फादर अफेक्टेड है तो वो प्रोड्यूसर करेगा अफेक्टेड एक्स जीन ओनली एक ही एक्स क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दोनों ही चिल्ड्रन में जब वो एक्स सेंड करेगा तो ओनली गर्ल चाइल्ड में ही एक्स शिफ्ट होगा, ओके, ट्रांसफ़र होगा। क्यों? क्योंकि मेल में तो सिर्फ वाई क्रोमोसोम ही फादर से ट्रांसमिट होगा, ओके, तो मेल विल नॉट बी एबल टू दैट सफर्ड, ओके। तो मेल को ये हीमोफीलिया नहीं होगा, because only Y chromosome is transmitted to the male child, and that is not having the presentation of hemophilic gene, ठीक है, hemophilic gene उसमें Y chromosome में एक्सप्रेस नहीं होती है, ठीक है। and the X chromosome that is coming from the female, उस पर तो दैट इज़ द नॉर्मल टाइप, और उस पर तो हीमोफिलिक जीन नहीं है, तो इसलिए वो नॉर्मल होगा। तो इस तरीके से अनअफेक्टेड सन और कैरियर डॉटर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड डॉटर्स दे आर 100% अफेक्टेड और 50% चिल्ड्रन आर अफेक्टेड, ओके, you can see in this picture. This is a very good picture and a very good example here to study the hemophilic transmission of characters. The heterozygous females are heterozygous in hemophilia, okay, and they are actually the transmitters for the disease, okay, and they are transmitting only to sons को ही ये डिसीज ट्रांसमिट करते हैं, एंड दे आर कैरियर्स, ओके। The possibility of female becoming a hemophilic is extremely rare. Hemophilic female होने के chances बहुत कम हो जाते हैं, because for getting the hemophilic female, one
should get the both X chromosomes which are having the genes for hemophilia, and they are coming from both the parents, and this is very unusual, very unusual or very rare case. So that is why both the parents we are not able to get the uh, at the same time, so that they are not able to so students we can say कि फीमेल को अगर फीमेल चाइल्ड को हीमोफीलिया से ग्रसित होना होता है, तो हम कह सकते हैं कि उसके कंट्रीब्यूटर पेरेंट्स दोनों ही रिक्वायर्ड होंगे, या हम कह सकते हैं इस केस में जिसमें दोनों ही पेरेंट्स में हीमोफिलिक जीन अवेलेबल है, या फिर उनका क्रोमोसोम हीमोफिलिक कंटेनिंग जीन है, तो ही वो उस गर्ल चाइल्ड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरीके का जीन, और इस तरीके से हीमोफीलिया उसी केस में हो सकता है गर्ल चाइल्ड को। अगर एक भी पेरेंट ये नॉन हीमोफिलिक होता है, तो ओनली 1x पास ऑन होगा गर्ल चाइल्ड में, और उस केस में द गर्ल चाइल्ड विल बी कैरियर हो जाएगा, और उसको डिसीज नहीं होगी। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द हेट्रोजाइगस फीमेल दैट इज ऑलवेज अ करियर। ठीक है, हेट्रोजाइगस फीमेल हमेशा कैरियर ही होगी हीमोफीलिया के लिए, एंड शी इज able to transmit the disease to sons only. Okay, she is not able to transmit the disease to girl child. गर्ल चाइल्ड को ट्रांसमिट नहीं कर पाती है हीमोफीलिया को, क्योंकि उसके लिए दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स हीमोफिलिक होने चाहिए। ओके, बट एक्स क्रोमोसोम पर एक ही एक्स क्रोमोसोम मेल्स में ट्रांसफ़र हो रहा है फीमेल पेरेंट से, तो एक्स क्रोमोसोम इज एबल सिंगल एक्स क्रोमोसोम इज एबल टू एक्सप्रेस इन बॉयज़, और मेल चाइल्ड में एक ही एक्स क्रोमोसोम एक्सप्रेस करने में पॉसिबल होता है। ठीक है, सक्षम है, तो इसीलिए बॉयज़ में ये डिसीज़ बहुत कॉमनली दिखाई दे जाएगी when the female is able to transmit the gene. Okay, now the possibility of female becoming hemophilic is extremely rare, as we have already discussed, because the mother of such a female has to be at least a carrier, and father should also be hemophilic. ठीक है, तो female, dear students, as we are studying about the वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, ओके, म्यूटेशंस को स्टडी कर रहे हैं, तो म्यूटेशंस को स्टडी हम दो तरीके से कर रहे हैं। एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम कैटेगराइज्ड फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, दूसरा क्रोमोसोमल एबरेशंस या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को स्टडी करने के लिए हमने सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को स्टडी किया, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था वो हीमोफीलिया का था, जो कि अभी हमने फिनिश किया है। और अब हम पढ़ने वाले हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स अंडर द मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में अब हम ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्पल हो जाता है वो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। ओके, यहाँ इसका पेडिग्री एनालिसिस के लिए पिक्चर दी हुई है। ओके, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। और दूसरा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट के लिए
सिकल सेल अनीमिया एक बहुत अच्छा क्लासिकल एग्जाम्पल हो जाता है। ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट में ऑटोजोम्स में डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ओके, और ये ऑटोजोम्स डोमिनेंट टाइप का ट्रेट होगा। ठीक है, ये ऑटोजोमल ट्रेट होगा वो डोमिनेंट टाइप का होगा। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। डोमिनेंट के लिए ऑटोजोमल एक्सप्रेशन में, ओके, ट्रेट के एक्सप्रेशन में ओनली सिंगल एलील इज सफिशिएंट। ओके, डोमिनेंस में आपने देखा था कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स में इनहेरिटेंस में देखा था कि ओनली वन एलील इज कैपेबल टू एक्सप्रेस द फिनोटाइप्स। ठीक है, यहाँ भी ऑटोजोम्स में ओनली वन एलील इज कैपेबल टू एक्सप्रेस द कैरेक्टर और ट्रेट। ठीक है, तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में हमें देखने को मिलता है। ये इसका पेडिग्री एनालिसिस अगर हम करते हैं तो सी दिस वन, द फीमेल that is affected one, okay, and male that is not affected, that is the normal type. Okay, now if they are mating and they are producing the offspring or children, तो क्या प्रोड्यूस होता है? ये सबसे पहले नॉर्मल गर्ल चाइल्ड यहाँ दिखाई गई है। ओके, नॉर्मल गर्ल चाइल्ड अगर प्रोड्यूस होती है एज एन ऑफस्प्रिंग, तो इसका मतलब होता है कि each X chromosome that is coming from each parent, okay, that is normal type. That is why the female child is normal, है ना। हर एक X क्रोमोसोम जो कि हर एक पेरेंट से आ रहा है, मेल और फीमेल पेरेंट से, ठीक है, कंट्रीब्यूट कर रहा है फीमेल चाइल्ड में, एंड द फीमेल चाइल्ड इज नॉर्मल। तो इसका मतलब हुआ दोनों एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल टाइप के हैं। अब दूसरा केस देखिए, इसमें मेल चाइल्ड इज अफेक्टेड, मेल चाइल्ड अफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ वाई क्रोमोसोम तो फादर से आ रहा है। ओके, so and Y chromosome is able to express only the sex, okay, sex of the boy, okay, whereas X chromosome that is coming from mother, okay, and you know X chromosome पर ही हमेशा जीन्स अवेलेबल होते हैं। ओके, तो यहाँ भी X chromosome that is coming from female, ओके, तो इस बार में फीमेल के पास से ऐसा एक्स क्रोमोसोम आया जिसमें कि डिसीज्ड जीन अवेलेबल था। ठीक है, ऐसा जीन अवेलेबल था विच इज कॉजिंग द डिसीज, है ना। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फीमेल के एक एक्स क्रोमोसोम पर डिसीज्ड जीन अवेलेबल है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर कोई ऐसा जीन नहीं है और वो नॉर्मल टाइप का क्रोमोसोम है। ठीक है, या उसके पास कोई ऐसी डिसीज्ड जीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, डिसीज फ्री जीन अवेलेबल है। ओके, नाउ अब देखिए तीसरा केस। तीसरे केस में नॉर्मल मेल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्मल मेल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि फादर से वाई क्रोमोसोम आ रहा है। ओके, एज यू नो दैट इज वाई इट इज अ बॉय। ओके, और एक्स क्रोमोसोम अब मदर से जो आ रहा है वो नॉर्मल टाइप का एक्स क्रोमोसोम है। दैट इज वाई ओनली द बॉय चाइल्ड, ओके, द मेल चाइल्ड इज एबल टू प्रोड्यूस द नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, शो कर रहा है ना। अब लास्ट केस देखिए कि जो फीमेल चाइल्ड है, ओके, गर्ल चाइल्ड है, दैट इज शोइंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिसीज। ठीक है, डिसीज की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है, एटलीस्ट एक एक्स क्रोमोसोम है। ओके, बिकॉज फॉर द डोमिनेंस
ओनली एटलीस्ट वन एक्स क्रोमोसोम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल से आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, बिकॉज फीमेल, that is the that is proven now, that is transferring the gene for the disease, ठीक है। एंड फादर से फादर से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, ओके। और फादर का एक्स क्रोमोसोम आपको मालूम है कि ओनली नॉर्मल है। यहाँ पर देखिए, पहली बार जब प्रोड्यूस हुआ था जो गर्ल चाइल्ड था वो नॉर्मल था, तो इसका मतलब था कि फादर के पास ओनली वन एक्स क्रोमोसोम है, ओके। ओनली एक एक्स क्रोमोसोम है, और वो भी नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है दैट इज ओनली फ्रॉम द फीमेल पेरेंट एज अ डिसीज्ड, ओके। जो डिसीज्ड जीन है वो सिर्फ मदर से ही ट्रांसमिट हो रहा है, फादर से नहीं हो रहा है, क्योंकि फादर के पास तो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, दैट इज ऑलरेडी हैज बीन प्रूवन, ठीक है। ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, ओके। तो इस तरीके से ये हमने ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को स्टडी किया है, ओके। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में जो कि मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा केस देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का है, जो कि सिकल सेल अनीमिया का है, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया में भी इसी तरीके का प्रेजेंटेशन हो जाता है। सी हियर इन द एग्जांपल, मेल पेरेंट इज नॉर्मल एंड फीमेल parent is also normal, okay, and they are not affected, okay. They are showing the non affectedness, okay. और जब इनकी प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है तो मेल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो नॉर्मल है। इसका मतलब होता है फादर इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली वाई क्रोमोसोम, तो उसके पास तो नॉर्मल वाई तो रहेगा। और जो एक्स क्रोमोसोम जो आ रहा है वो फीमेल पेरेंट से आ रहा है, एंड दैट इज हैविंग नो डिसीज, ठीक है। वो नॉर्मल टाइप का एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, इसीलिए मेल चाइल्ड में कोई डिसीज नहीं है। दूसरी केस में देखिए कि मेल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है और उस वो डिसीज्ड है, उसमें डिसीज है। इसका मतलब वाई क्रोमोसोम जो फादर से आ रहा है that is expressing the sex of the boy, okay, and the X chromosome is coming from the mother, okay, और X chromosome mother से आ रहा है, and that is diseased now, okay. That chromosome is representing a diseased gene, ठीक है, और उसका क्रोमोसोम डिसीज्ड जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जीन मदर से ट्रांसमिट हो रहा है, ओके। थर्ड केस में देखिए गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो भी नॉर्मल टाइप की, दैट मीन्स फादर इज हैविंग द नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, ओके। why? Because father is here, and the child is not able to express the phenotype, okay, for the disease, ठीक है। Whereas mother is contributing, is also contributing the normal x chromosome, which is having the normal gene, ठीक है। तो नॉर्मल जीन यहाँ पर मदर भी कंट्रीब्यूट कर रही है और फादर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर गर्ल चाइल्ड में कोई डिसीज नहीं है, ओके। इस अब देखिए लास्ट केस में ये उससे पहले का केस देखिए, इसके बाद का इसमें देखिए फीमेल चाइल्ड इज एक्सप्रेसिंग द डिसीज। अब फीमेल चाइल्ड हमने देखा था कि फादर के एक्स क्रोमोसोम पर तो कोई डिसीज्ड जीन नहीं है, ओके। And mother is having, now in this case mother is probably and definitely having the diseased gene on another x chromosome, दूसरे x क्रोमोसोम पर डिसीज्ड जीन अवेलेबल है। तो इससे ये आप
देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में एक लास्ट वाला केस और है कि मेल नॉर्मल आ रहा है। इसका मतलब होता है कि वाई क्रोमोसोम तो फादर से आया है और एक्स क्रोमोसोम जो इसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है वो नॉर्मल टाइप का है जो कि फीमेल पेरेंट से आया। इस तरीके से हमने देखा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट में ऑटोसोम्स में एटलीस्ट एक डोमिनेंट जीन की रिक्वायरमेंट होती है टू एक्सप्रेस द ट्रेट, ओके। whereas in autosomal recessive trait both the recessive alleles are required for the expression of the trait, okay। तो जब होमोजाइगस कंडीशन ही होती है तब उस केस में ही डिसीज एक्सप्रेस हो पाती है, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में। इसको हम सिकल सेल एनीमिया को आगे भी स्टडी करने वाले हैं, ओके। नाउ कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ओके। दैट इज ड्यू टू द डिफेक्ट in either red or green cone of eye resulting in failure to discriminate between the red and green color। इसमें क्या होता है कि affected person that is not able to distinguish between the red and green color, पर्सन जो अफेक्ट हो रहा है रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है बिकॉज उसके जो कोन हैं वो दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश और टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। उसकी आई में जो कोन सेल्स होते हैं उनकी कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है एंड दे आर नॉट एबल एंड दे आर नॉट प्रेजेंट समटाइम्स एंड दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, बिटवीन द टू कलर्स ऑफ रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन के कलर को डिस्टिंग्विश कर नहीं सकते, इसीलिए उनमें ये डिसीज़ होती है। और ये जो डिसीज़ होती है वो म्यूटेशंस की वजह से होती है और सर्टेन टाइप का जीन जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉर्मली इस तरीके की जो कंडीशन है वो 8% मेल्स में दिखाई देती है और 0.4% फीमेल्स में दिखाई देती है, ठीक है। This is because the genes that led to the red-green color blindness are on the X chromosome. Males में 8% बहुत ज़्यादा परसेंटेज होने का कारण यही है कि X क्रोमोसोम पर जीन अवेलेबल होते हैं और फीमेल्स में 0.4% होने का कारण भी यही है कि जो रेड एंड ग्रीन कलर के लिए ब्लाइंडनेस को जो जीन शो करता है वो एक्स क्रोमोसोम पर ही होता है, ओके। Males have only one X chromosome and females have two. The son of the woman who carries the gene has 50% chance of being color blind, okay। Males को आप जानते हैं कि उनके पास X क्रोमोसोम होता है, एक ही होता है, ओके। और फीमेल्स में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मेल्स जो हैं वो फीमेल के द्वारा या फीमेल पेरेंट के द्वारा ही उनमें जीन ट्रांसफ़र होता है। दैट इज़ वाई द मेल आर हैविंग 50% चांस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। इसीलिए जो मेल चाइल्ड हैं दे आर हैविंग 50% चांस ऑफ गेटिंग द कलर ब्लाइंड, ओके। बिकॉज अगर फीमेल दैट इज हैविंग ओनली 1x, ओके, तो उनके पास ओनली एक ही x अगर कलर ब्लाइंड है, ठीक है, तो मेल में 50% मेल्स में वो होना ही है, ओके, कलर ब्लाइंड होना है। बट अगर फीमेल के
दोनों एक्स क्रोमोसोम्स दे आर कलर ब्लाइंड, ओके, जीन्स दे आर हैविंग कलर ब्लाइंड जीन्स, तो फिर 100% मेल कलर ब्लाइंड होंगे F1 प्रोजेनी में, ओके। The mother is not herself colorblind because the gene is recessive. जीन रिसेसिव होता है इसलिए मदर कलर ब्लाइंड नहीं है, बिकॉज हियर मदर इज ओनली रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम विच इज हैविंग अ सिंगल जीन, ठीक है। एक ही जीन प्रेजेंट होता है कलर ब्लाइंड के लिए मदर में नॉर्मली। ये नॉर्मल जो मदर है दैट इज being carrying the gene, okay, that means its effect is supposed by her matching dominant normal gene। अगर वो dominant normal gene के साथ combine करता है that means its effect is suppressed by her मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन्स। अगर वो नॉर्मल डोमिनेंट जीन से अगर कंबाइन करता है तो उसका डिसीज्ड जीन है वो सप्रेस हो जाता है एंड दैट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसीलिए फीमेल में ये एक्सप्रेस नहीं होता क्योंकि फीमेल इज शोइंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम विद डिसीज्ड जीन, ठीक है। एक ही एक्स क्रोमोसोम डिसीज्ड जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और फादर तो नॉर्मल टाइप का है, तो मेटिंग करने के बाद ओनली वन एक्स पास ऑन हो रहा है मदर में, सॉरी गर्ल चाइल्ड में। तो girl child is having no more disease for the color blindness, okay, whereas the father, that will be sorry, the boy child or boy child, male child, that will be the color blind because it is having only X chromosome and that is if coming from the mother, ठीक है, और वो मदर से ही आ रहा है और दोनों एक्स क्रोमोसोम्स में से अगर 50% चांस हो जाते हैं अगर वो डिसीज्ड जीन वाला एक्स कैरी फॉरवर्ड करता है तब, ओके। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड, और डॉटर कलर ब्लाइंड नहीं होती है, ओके, अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड। डॉटर तभी कलर ब्लाइंड होगी जब मदर एटलीस्ट करियर हो, ओके, देर आर चांसेस ओनली व्हेन मदर एटलीस्ट करियर हो, ठीक है, और फादर कलर ब्लाइंड हो बिकॉज दैट विल कंट्रीब्यूट टू द फीमेल चाइल्ड, ओके। तो एक्स क्रोमोसोम जो कि डिसीज्ड जीन कैरी कर रहा है तो फादर से वो एक्स क्रोमोसोम जाएगा और मदर से एटलीस्ट एक एक्स क्रोमोसोम डिसीज्ड होना चाहिए विच इज़ कैरिंग द डिसीज्ड जीन, तो वो अगर यूनाइट कर जाएगा और जाइगोट में रिकम्बाइन हो जाएंगे तो फीमेल चाइल्ड एटलीस्ट 50% फीमेल चाइल्ड दे कैन possess of the total female children, they can possess the color blind.